Yeah, so I'll introduce myself. Do you know me? That's the first question. What's my name? Anish sir. Okay, what's my qualification? I'm a chartered accountant, definitely. I'm a chartered accountant and I have cleared my CA as a student without failing ever in this. दो जन को दे दो ये. Hello. Yeah, so as a student, I have never failed ever. In fact, my lowest score in any subject is 67 out of 100. That is my lowest score. पासिंग कितना रहता है पता है सीए में? वैसे हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 करेक्ट. एग्रीगेट कितना चाहिए? नो. That is what percentage? It is not 60%, 50% exactly. तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40 स्कोर करना रहता है, 40 out of 100, and aggregate all subjects taken together you have to score 50. And when I was a student also, I was also told CA is very tough. वो टाइम पे भी चैट जीपीटी हुआ करते थे, but they were human beings. Nowadays it is machine. तो वो भी वैसे ही बोलते थे, रिजल्ट बहुत टफ आता है, सीए में बच्चे फेल हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. आई डोंट नो. आई नेवर अंडरस्टूड दैट एट दैट टाइम ऑल्सो. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट टुडे ऑल्सो. सीए इज नॉट टफ. सीए इज वेरी वेरी लेंथी syllabus because CA is one degree which makes you specialized in many subjects. It is not that chartered accountant मतलब accounts एक subject है जिसमें आप specialization करते हो. Nothing like that. It is accounts the one subject where you will specialize. Finance is the other subject where you will specialize. Then there is a direct tax. Direct tax मतलब simple भाषा में income tax. एक GST करके होता है, शायद सुना रहेगा, Goods and Service Tax. There is something called as a auditing, where a chartered accountant will check the books of accounts of various companies. There is a subject called as a law. A chartered accountant is one professional in commerce who specializes in many subjects, and therefore he is supposed to be or is considered to be a versatile professional. Suppose somebody wants to do company secretary. कितने बजे का लेक्चर था? 9 बजे का. और अभी कितना बजा है? वेकेशन है ना, बहुत टाइम से जल्दी उठे नहीं यहाँ पर. आई नो यार, 1.5-2 महीने के बाद पहली बार. क्या परसेंटेज है 10th में तेरा? 86. 90. Okay. Sit down. You don't have to write anything. Just listen. We have just started. Yeah. So CA का जो करिकुलम है ये लेंदी है because this profession allows you to do the specialization in many subjects at a time. Like I was telling, किसी को company secretary करना है, so that is also a very good course, but that will specialize only in one subject and that subject is corporate law. अब कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे किसी बड़ी कंपनी में, बिकॉज एवरी कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, इट इज कंपल्सरी टू हैव कंपनी सेक्रेटरी इन योर कंपनी. तो आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगा एंड योर मेन जॉब विल बी समथिंग कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट कंप्लायंस. मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंपनी लॉ के जो भी प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस ये कंपनी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. Likewise, there is something called as a CWA, and there is somebody wants to do CFA. So CFA will very much specialize only in the finance. But why more students are attracted towards doing CA is mainly because it helps you being specialized in many areas. You can do job, you can do your own practice, you can work as a chartered accountant full-timer, you can work as a part-timer. There is a lot of flexibility is available to somebody who is a chartered accountant. If I am a company secretary, I don't get that flexibility. किसी बड़ी कंपनी में जाने का 9 hours a day job, 2 to 3 hours a day travel in the Mumbai,
and therefore 11 to 12 hours is something that you will have to invest. Now maybe for somebody that may not be possible. As a girl, for example, in future maybe you may have a dual responsibility. Our society unfortunately is very much male dominated, that even if the male and female both are working, then also the household responsibilities is something that is expected that female will have to complete. तो हो सकता है आप दिन में 12 घंटा काम नहीं कर सकते हो, or you don't want to sit at home and be a full-time housewife. I mean, why would anybody want to do that? Your parents are making you study so that you can always become independent and you are not dependent on anybody. So चार्टर्ड अकाउंटेंट का एडवांटेज ये है कि आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाते हैं. ड्रॉबैक भी है कि सिलेबस बहुत लेंदी है, एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं करना है ना. सो दे मेक यू स्पेशलाइज इन सो मेनी सब्जेक्ट, तो सिलेबस लेंदी हो जाता है. बट सिलेबस लेंदी होने की वजह से ये कोर्स टफ नहीं है. सिलेबस लेंदी होने की वजह से इट इज़ नॉट दैट कि भाई रिजल्ट कम आता है. रिजल्ट इज़ अराउंड 15 to 20%. देयर इज़ नो 4 to 6% काइंड ऑफ इट. आप गूगल करके अगर चेक करोगे लास्ट 2-3-4 साल का डेटा, दे माइट बी गिविंग द एवरेज ऑफ 15 years. तो मैं जब भी पढ़ता था तो CA फाइनल का रिजल्ट 2% था, लॉन्ग बैक. CA फाइनल का नहीं बेटा, CA के हर लेवल का रिजल्ट, वेदर इट इज फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज द डिमांड ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द कंट्री एंड व्हाट इज द सप्लाई ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट. अपना कंट्री फॉर एग्जांपल इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हाईली डेवलपिंग नेशन नाउ. स्टिल वी आर नॉट डेवलप्ड नेशन, बट वी आर हाईली डेवलपिंग नेशन. तो हमारे देश में अगर CA की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो पासिंग परसेंटेज बेटर हो जाता है, 30% हो जाएगा. और कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा हो गए और इंडस्ट्री में रिसेशन है और CA की डिमांड कम हो गई फॉर एग्जांपल, तो रिजल्ट थोड़ा टफ आता है. बट नथिंग लाइक 4% 6% नावेडेज. ये उस ज़माने की बात है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तभी 2%, 3%, 4% दैट काइंड ऑफ रिजल्ट यूज्ड टू कम. सो दोज हू वांट्स टू डू CA, एक ही चीज़ है जो आपको करना है, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ कंसिस्टेंसी. आप 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तरह लास्ट का 2 महीना या लास्ट का 3 महीना अगर पढ़ाई करोगे, आप बहुत ही आराम से फेल हो जाओगे, दिक्कत भी नहीं होएगी. वेरी कंफर्टेबली यू विल फॉल इनटू दैट 80% स्टूडेंट्स हु फेल इन द CA एग्जाम. नॉट बिकॉज इट इज टफ, वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट. CA curriculum is one of the most practical curriculum designed in our country, क्योंकि जो भी तुम पढ़ोगे ना, you will be always able to relate that to the real life. ऐसा नहीं है कि आप थियोरिटिकल पढ़ोगे. अभी 10th में तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुमने रट्टा मारा रहेगा and you scored very heavily in the exam. Not that you didn't score, you scored very heavily. क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड का एक टेक्स्ट बुक रहता है, बस उसी में से पूरा क्वेश्चन पेपर आता है. Or maybe I don't know how many of you felt interested about knowing in your last birth what happened. 1937 में क्या हुआ? 1937 में तो पक्का तुम लोग का लास्ट बर्थ रहेगा. I don't know whether you were ever interested in learning that, or because it is there in the curriculum, you have by hearted that, जाके एग्जाम में वॉमिट किया and you scored very heavily. I know that because my son was last year in 10th standard. Was from Friends Academy only. He scored 100 out of 100 in history. So till today he doesn't know what he studied. तो भूल भी गया कब का. I don't remember. वो टाइम पे तो बाहर कर दिया, मेमोराइजिंग कैपेसिटी अच्छा है. लेकिन CA या कॉमर्स वैसा नहीं है. You will be able to relate to almost everything in the real life. लेकिन आप लास्ट 3 महीना नहीं पढ़ सकते, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा. Every week you will have to study, every day you will have to study, maybe 1 hour, 2 hour, लेकिन डेली थोड़ा 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 प्रिपरेशन करना पड़ेगा. Is a simple rule, not just for CA, but for any worthy degree in commerce that you want to take, whether it is CS, whether it is CFA, whether after CA you want to do HUDN, but professional course है ना, उसको आप इसे स्टेट बोर्ड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, या आपके 10th ICSE या CBSE की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. उसमें भी आप पूरा साल पढ़ते थे. आई कांट से कि आप पढ़ते नहीं थे, लेकिन वो जो सीरियसनेस आता था ना पढ़ने का, वो दिवाली के बाद ही आता था, लास्ट 3 महीना. ऑल ऑफ ए सडन यू रियलाइज आई लव बोर्ड एग्जाम है, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग.
बस वो एक छोटा सा चेंज है जो आपको करना रहेगा, डेली रूटीन में पढ़ाई को डालना पड़ेगा. इट कुड बी 1 hour a day, 2 hours a day, बट डेली, मंडे टू सैटरडे. संडे इज योर डे, बट मंडे टू सैटरडे 6 दिन में 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो. So your whole day will be occupied, because morning you will be coming to coaching class, then afternoon you will be going to college. You may not go to the college all 6 days a week, but you will have to still go to college at least 3 to 4 days a week, because nowadays most of the colleges attendance का problem करते हैं. लेकिन बाकी का 2-3 दिन घर पे रहोगे तो पढ़ाई करना है, इवनिंग में पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है. यू हैव टू बी अ सिंसियर स्टूडेंट, नॉट जस्ट इन लास्ट 2 months, बट यू विल हैव टू बी सिंसियर स्टूडेंट थ्रू आउट योर जर्नी. अगर आप इतना सा सिंपल, देख सुनने में कितना सिंपल है, एग्जीक्यूट करने में डिफ़िकल्ट है. ट्रस्ट में, डेली बेसिस पे पढ़ना, नया नया कॉलेज लाइफ रहेगा, तो नए नए दोस्त बनेंगे. यू आर फ्रॉम स्कूल which is a very controlled environment in and around your residence, fully under the control of your parents. कभी थोड़ा बाहर निकलोगे, खुद से ट्रैवल करोगे, depending upon your colleges in Mulund or outside. Most students may prefer outside. तो थोड़ा खुद से ट्रैवल करोगे, नए दोस्त बनोगे. It's a new experience that you are going to go through. बट उसमें भी फिर दिन में 2 घंटा पढ़ाई करना ही पड़ेगा, अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करके स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करना है. बिकॉज सिर्फ ग्रेजुएशन करोगे, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू अर्न इनफ मनी दैट यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ. ग्रेजुएट को क्या मिलता है? 20,000, 25,000, 30,000 ऑन अ वेरी हायर साइड. इसमें कुछ नहीं होता, आज के ज़माने में भी कुछ नहीं होता. 5-7 years down the line, where you will complete your studies, the way there is a inflation in our country, so obviously you will find it more difficult. अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, खुद के लिए और परिवार के लिए, you will need good amount of money. That is possible only when you take some professional degree. So anyway, we just spoke generally. You know which subject I am going to teach, by the way? कौन से सब्जेक्ट के डेमो में आए हो? अकाउंट्स. अकाउंट्स मतलब सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंट्स इज समथिंग विच इज़ वेरी जनरल, जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है. बट वैसे ये जो अकाउंट्स करके जो भी सब्जेक्ट आप बोल रहे हो, सो इट इज़ बेसिकली व्हाट द एक्चुअल नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज. बुक कीपिंग इज हाफ ऑफ द नेम. ये पढ़ के आंसर नहीं देने का. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट्स करके सब्जेक्ट बोलते हो, इजीली the most important subject of commerce. Not because I am a teacher, I'm not talking from that point of view. Because this is the only subject जो 11th स्टैंडर्ड से लेके एंड तक रहेगा. चाहे आप CA फाइनल का एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप CS फाइनल का एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप CFA कर रहे हो, चाहे आप MBA कर रहे हो, चाहे आप ACCA कर रहे हो. Nowadays there are so many options. लेकिन एक सब्जेक्ट है जो हर साल रहेगा, irrespective of what you are doing, that is accounts. बाकी सब सब्जेक्ट बीच में आएंगे जाएंगे. इकोनॉमिक्स 3 साल रहेगा, फिर पीछे के 3 साल नहीं रहेगा. मैथ्स 11th-12th फाउंडेशन में रहेगा, इंटर और फाइनल में नहीं रहेगा. OC 11th-12th में रहेगा, फाउंडेशन इंटर फाइनल में नहीं रहेगा. बाकी सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड है. अकाउंट्स इज वन सब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाई द डिग्री इज कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज अकाउंट्स इज वन सब्जेक्ट विच विल बी देयर थ्रू आउट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टिल वॉट एवर कोर्स दैट यू आर परस्यूइंग. तो आज के सेशन में ऑब्वियसली हम एक्चुअली पढ़ाई स्टार्ट नहीं करने वाले. योर बैच इज गोइंग टू स्टार्ट आई थिंक फ्रॉम 2nd of June. टुडे इज मोर लाइक ए इंट्रोडक्शन दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई ये सब्जेक्ट है क्या. चलो सर, तुम में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता रहेगा व्हाट इज दिस सब्जेक्ट. सो एनीबडी, अकाउंट्स जो आपने बताया, क्या जानते हो? व्हाट यू नो? अकाउंट्स किसके लिए यूजफुल रहता है? कोई बंदा जो जॉब करता रहता है उसके लिए यूजफुल है, कि कोई बंदा बिजनेस करता रहता है? बिजनेस करता रहता है. ओके, सो व्हाट यू नो अबाउट इट, थोड़ा बहुत अगर आपको पता है, सो यू कैन प्लीज टॉक, एंड देन ऑन दैट बेस आई विल स्टार्ट.
recording the financial transactions of organization. Okay, what is transactions? Give and take of money. मतलब both will give money to each other. Why like that? I know, but I'm give and take of money मतलब छुट्टा करवा रहा हूँ क्या? मैंने तेरे को 100 का नोट दिया, तूने मेरे को 50 का दो. I don't think that is transaction. Buying and selling of goods. कोई भी बिजनेस इमेजिन करो तो. अरे तुम लोग पढ़ाई कंप्लीट करके क्या करने वाले हो? How many of you are going to do business? 3 जन. ओके, बाकी लोग? एक ही ऑप्शन है अभी, इतने सारे ऑप्शन थोड़ी है. 2 ही तो ऑप्शन है तुम्हारे पास लाइफ में. या तो बिजनेस करना है, और अगर बिजनेस नहीं करना रहेगा देन व्हाट इज अनदर ऑप्शन? एवरीबडी जॉब करेगा. ऑब्वियसली जॉब कहाँ करोगे? किसके पास जॉब करोगे? वो बंदा क्या कर रहा है? तुम जिसके पास जॉब करने जा रहे हो वो कंपनी क्या कर रहा है? बिजनेस ही कर रहा है. मतलब तुम बिजनेस से तो छूट ही नहीं पाओगे. चाहे तो खुद का बिजनेस करो, चाहे तो और किसी के बिजनेस में सर्विस रेंडर करो. 2 ही चॉइस है तुम्हारे पास. या तो खुद का बिजनेस करो. व्हाट डू यू मीन बाय खुद का बिजनेस करो? मतलब खुद का बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? व्हाट इज इट दैट यू आर सपोज टू डू? अगर आपको खुद का बिजनेस करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? थोड़ा इमेजिन करो, जो भी तुमको थोड़ा बहुत पता रहेगा. ये राइटिंग पैड चालू हो सकता है क्या? तो जरा फोन करके बाहर से ही फोन करो ना, मेरे को ये पैड चालू करवा के दो ना. हाँ, उसको बोलो थोड़ा राइटिंग पैड चालू करके दे. हाँ, तो बिजनेस करो ना. ऐसे इमेजिन करो तुम्हारे आसपास इतना सारा दुकान है. इधर से बाहर निकलोगे, you'll find so many shops are there, the restaurant is there, the bank is there, the insurance company is there. ये सारे लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे हिसाब से? What all these people are doing? No, they are doing business. That is okay. What I am asking you, are they doing the job or are they doing the business? किसी होटल में तुम जाके खाना खाते हो तो वो होटल वाला क्या कर रहा है आपके हिसाब से? बिजनेस कर रहा है. तुम कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो फॉर एग्जांपल, टुमारो यू डिसाइड टू ज्वाइन प्रोफेशनल एकेडमी. सो व्हाट इज प्रोफेशनल एकेडमी डूइंग? बिजनेस ही कर रहा है. और क्या कर रहा है? कोई होटल में जाके खाना खाते हो, किसी दुकान से जाके कपड़ा खरीदते हो, ऑनलाइन जाके अमेजोन में जाके. नाउअडेज वी परचेज सो मेनी थिंग्स थ्रू ऑनलाइन. फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, गॉड नोस हाउ मेनी आर देयर. वो सारे लोग कर क्या रहे हैं आपके हिसाब से? वो लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं. किधर अपने को कहीं बाहर जाना रहेगा तो अपन ओला उबेर पे जाके क्या करते हैं? कैब बुक करते हैं. वो ओला उबेर वाला क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है. भूख लगी रहेगी, खाना खाना है, पार्सल चाहिए, तो हम किधर जाते हैं? स्विगी जोमेटो पे जाते हैं फॉर एग्जांपल. तो स्विगी जोमेटो वाला क्या कर रहा है? बिजनेस ही कर रहा है. अपन घिरे हुए हैं बिजनेस से. इधर से बाहर निकलो, नीचे उतरो, लेफ्ट में तुमको जितना दुकान दिखेगा, राइट में जितना दिखेगा, ऑफिस दिखेगा. आई मीन एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस ओनली. और जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो भी तो अपना सर्विस देते हैं इन समबडीज बिजनेस. सो आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन, बेटा तो क्या कर रहा है? ओके, वो शीट ओपन नहीं रखा है ना, उसको बंद कर दे. अभी तेरे को शीट नहीं मिला है? ओके, कुछ अर्जेंट फोन में रहेगा तो यू कैन पिक अप द कॉल. ओके, दैट्स इट. सो व्हाट इज द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच टॉकिंग अबाउट, connected to, related to business. और बिजनेस से आप कभी छूट नहीं पाओगे, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपके पास सिर्फ 2 चॉइस है. या तो आप खुद का बिजनेस करो और यू रेंडर सर्विसेज इन समबडी एल्सेस बिजनेस. जॉब का मतलब तो वही होता है,
आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करोगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए CFA, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप किसी बड़े ब्रोकर के पास जॉब कर रहे हो, किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो, लेकिन तुम बोलोगे सर मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बिजनेस के बारे में जानने की ज़रूरत क्या है? अरे तो बिजनेस के बारे में नहीं जानोगे तो जॉब में करोगे क्या? Because you will have to render services into somebody's business. तो उसके लिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बिजनेस की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. यू एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बी स्लोली बट श्योरली शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई एक बिजनेस होता क्या है. किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बिजनेस में गुड्स बेच रहे हो कि सर्विसेज दे रहे हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम. गुड्स समझते हो? ये वर्ड मैंने अभी यूज किया, गुड्स. सामान बेचते हो मतलब आप किसी स्टेशनरी शॉप में जाते हो. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज गुड्स फॉर दैट स्टेशनरी शॉप? ऐसे इमेजिन कर सकते हो एक पेन, पेंसिल, स्केल, फुल स्केप पेपर, कंप्यूटर पेपर, रबर स्टैम्प एंड सो ऑन. स्टेशनरी का कोई भी सामान रहेगा तो वो स्टेशनरी शॉप के लिए ऑल दिस स्टेशनरी इज कॉल्ड एज गुड्स. समझो किसी होटल में खाना खाने गए, विच इज़ अ फेवरेट होटल मुलुंड में, कोई नाम ले लो तो. कीर्ति महल है, अच्छी जा सुना है? अच्छी जा, कीर्ति महल. तो तुम वहाँ खाना खाने जाते हो तो इमेजिन करो तुम अगर खाना खाने जा रहे हो तो होटल वाला क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? बिजनेस कर रहा है. उसके लिए गुड्स क्या है? उस होटल वाले के लिए गुड्स क्या है जो वो अपन कस्टमर लोग को बेचता है? खाना है. पाव भाजी ने, पंजाबी ने, डोसा ने, इडली ने, वॉट एवर पूरा जो उसका मेनू कार्ड है वो उसके लिए गुड्स है. किसी दवाई की दुकान पे चले जाओ, मेडिसिन शॉप में चले जाओ तो जो भी मेडिसिन रहेगा वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा. कोई फर्नीचर की दुकान में चले जाओ तो टेबल, कुर्सी एंड एवरीथिंग विच फर्नीचर शॉप विल सेल इज अ गुड्स फॉर हिम. क्रोमा में चले जाओ. क्रोमा पता है किधर है? क्रोमा मुलुंड में है. किधर है? आर मॉल के साइड पे वो छोटा सा गली है तो उधर बड़ा शॉप है क्रोमा. तो क्रोमा वाले के लिए कैन यू टेल मी व्हाट इज गुड्स फॉर क्रोमा? इलेक्ट्रॉनिक का जो भी रहेगा क्रोमा के अंदर चले जाओ और इंसान को छोड़ के जो भी दिखता है तुमको एवरीथिंग इज गुड्स. डू यू एग्री? और हम लोग क्या कर, नो यू डोंट एग्री? एग्जैक्टली. सो अभी क्रोमा वाला एसी बेचता भी है लेकिन कुछ एसी तो वैसे रहेंगे जो क्रोमा वाला खुद यूज भी करता रहेगा. तो वो एसी वो बेचने वाला है नहीं, तो उसके लिए वो एसेट नहीं. द करेक्ट वर्ड फॉर दैट इज फिक्स्ड एसेट. क्या बोलते हैं उसको? फिक्स्ड एसेट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट? थोड़े थोड़े कुछ टर्म्स बता रहा हूँ. एग्जैक्टली मतलब सिंपल भाषा में अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो गुड्स वो होता है जो हम बेच देते हैं. खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं. मैं पूरा साल वही करता रहता हूँ. ऑब्वियसली खरीदूंगा जो भाव में वही भाव में थोड़ी बेचने वाला हूँ. डू यू एग्री? थोड़ा क्या ऐड करूंगा मैं उसके अंदर? प्रॉफिट ऐड करके ज़्यादा भाव में बेच देगा तो मेरे लिए गुड्स हो जाएगा. हमारे लिए गुड्स क्या है? कोचिंग क्लास के लिए मतलब कोचिंग क्लास के लिए गुड्स होता है कि कोचिंग क्लास के लिए गुड्स नहीं होता है? डू वी सेल द गुड्स और डू वी रेंडर द सर्विसेज? एग्जैक्टली. एक बैंक क्या करता है? बैंक में जाते हो ना, ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो आपको क्या लगता है बैंक वाला क्या कर रहा है? चैरिटी कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है. तो बिजनेस करने वाला क्या कमाता है मेरे को बताओगे? कोई बंदा अगर बिजनेस करता रहेगा तो उसको सैलरी तो मिलेगा नहीं. तो कोई बंदा अगर बिजनेस करता रहेगा सो कैन यू टेल मी उसको पैसा कैसे मिलता है? देख हर एक को पैसा तो कमाना ही है. चाहे तुम बिजनेस करो चाहे किसी के बिजनेस में जॉब करो, पैसा तो सबको कमाना ही है. तुम लोग पढ़ाई काय के लिए कर रहे हो? ज्ञान पाने के लिए. हाँ, दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट फॉल्स. यू वांट टू एक्वायर अ नॉलेज.
लेकिन नॉलेज एक्वायर करके क्या करोगे? घर पे बैठ के रोटी पकाओगे पूरा दिन, तो क्या करोगे? पैसा कमाएगा ऑब्वियसली। पूरा अपना सोसाइटी वैसा है यार कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही रहता है। सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। इफ़ यू हैव अ नॉलेज, यू यूज़ योर नॉलेज एंड अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। पैसा गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए, लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई एम वेरी स्पेशलाइज्ड इन सो मैनी सब्जेक्ट्स, और उसकी वजह से अगर मैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ या तो खुद का बिजनेस करता हूँ, तो पैसा तो सबको कमाना है यार। जॉब करोगे तो क्या मिलता है तुमको? वैसे समझो तुम जॉब करोगे तो व्हाट यू गेट? सैलरी। ये हर महीने अलग अलग अमाउंट मिलता है कि फिक्स रहता है? फिक्स रहता है। लेकिन बिजनेस करोगे तो क्या मिलेगा? से यू हैव टू पार्टिसिपेट प्लीज़। मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ टुडे। आई कांट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ऑब्वियसली, बट मैं थोड़ा तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सो प्लीज़ थोड़ा पार्टिसिपेट करो। बिजनेस करूँगा तो सैलरी तो नहीं मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट क्या रहता है? हर महीने ऐसे फिक्स्ड रहता है कि प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है? कभी लॉस होता है क्या बिजनेस में? बिल्कुल हो सकता है यार। बिजनेस है तो रिस्क तो है ही। तो मुझे बताओ, बिजनेस अच्छा कि जॉब अच्छा? किसमें रिस्क ज़्यादा है? अरे जॉब में ज़्यादा है रे, तुम लोग को पता ही नहीं है लाइफ का। कभी भी जॉब चला जाता है। समझो तुम जिसके बिजनेस में जॉब कर रहे हो, उसका बिजनेस में लॉस हो गया तो तुमको निकाल देगा, फिर 12 महीने तक दूसरा जॉब नहीं मिलता है। सिक्योरिटी किस चीज़ का होता है पता है? एक ही चीज़ का सिक्योरिटी है, एंड दैट इज नॉलेज। तुम अगर ट्रेमेंडियस नॉलेजेबल हो ना, तुमको लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। एक कंपनी में से जॉब जाएगा ना, 4 कंपनी लाइन में खड़ी हो जाएगी, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल प्रोफेशनल। तो किस एरिया में काम करना चाहिए तुमको? अपने ब्रेन के ऊपर, बिकॉज इसमें कभी मंदी नहीं आती। मतलब जो लोग प्रोफेशनल थे ना, उसको कोविड के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोविड मालूम है ना? 2020 में कोविड हुआ था। बिजनेसमैन लॉस में चले गए थे, लेकिन कभी सुना है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉस में गया, कोई लॉयर लॉस में गया, डॉक्टर लिखने तो मजबूत पैसा बनाया, टीचर लॉस में गया? ऐसा कभी सुना भी है क्या? नहीं ना। बिकॉज हम लोग जिस चीज़ का पैसा लेते हैं वो है दिमाग, और उसमें तो कभी मंदी आ ही नहीं सकती, बिकॉज हम कंटिन्यूस अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। ऐसे थोड़ी है कि तुम 5 साल पढ़ाई करोगे उसके बाद पढ़ना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम लोग आज जो पढ़ाई करोगे वो कल आउटडेटेड हो जाएगा। लॉ अपने देश में चेंज होता रहता है, इनकम टैक्स चेंज होता रहता है, जीएसटी चेंज होता रहता है। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग खाली अभी 5 साल पढ़ाई करोगे, डिग्री मिल गया एंड दैट इज द एंड ऑफ योर नॉलेज। तुमको प्रोफेशनल बनने के बाद भी कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना ही पड़ेगा, अपने आप को कंटिन्यूस अपडेट करना पड़ेगा। मैं जब स्टूडेंट था ना, कभी 14 इंजेक्शन मारते थे। मालूम है कभी 14 इंजेक्शन मारते थे? कभी सुना है क्या? कभी? हाँ, लेकिन 14 इंजेक्शन डॉग काटता था तो तभी। इमेजिन करो उस जमाने में कोई डॉक्टर बना था और वो आज तक पेशेंट को 14 इंजेक्शन ही मार रहा है, उसका तो डिस्पेंसरी बंद हो जाएगा। क्यों? अभी 4 या 5 में है, मैंने तो 3 सुना है ऑनेस्टली, कि 3 इंजेक्शन मारा तो बस हो जाता है। तो कुत्ते के नज़दीक नहीं जाना, बहुत बाइट करता है वो। बट समझो, इमेजिन करो कोई 30 साल पहले डॉक्टर बना रहेगा और वो अगर पढ़ाई छोड़ दिया, वो अगर अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, तो वो आज भी कुत्ता काटेगा तो 14 इंजेक्शन मारेगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट केस कर देगा, भाई तूने पेशेंट का इलाज गलत तरीके से किया, 3 या 4 इंजेक्शन तो बहुत हो गया। तो वैसे ही अपना जो प्रोफेशन है ना, सीए बोलो, सीएफए बोलो, सीएस बोलो, इसमें भी है ना कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। तो कल अगर तुम पढ़ लिख के बड़े प्रोफेशनल बन गए ना बेटा, तो भी दिन में तुमको 2 घंटा पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आज से वो हैबिट डालो। बिकॉज ये 5 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये नेक्स्ट 40 साल के लिए बोल रहा हूँ कि डेली तुमको 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा डेली तुम्हारा शेड्यूल बिजी रहेगा। तो वीकेंड में सैटरडे संडे, लेकिन तुमको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस, 1 आवर 2 आवर, एंड यू टू कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ। तो अभी से वो आदत डालो, चाहे वॉर होएगा, चाहे इकोनॉमी में रिसेशन रहेगा, चाहे कोई कोविड जैसा वायरस आ जाएगा, तुम लोग को तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हम लोग को तो प्रोफेशनल्स को आज तक कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं है। कोविड था तो हम लोग पकड़े बैठे रहे, ऑनलाइन पढ़ाते थे। आज ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, कोविड है तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। लेकिन कभी कैसे सोचा है कोई लॉयर की लाइफ में प्रॉब्लम आ गया,
ऐसा न्यूज़ वगैरह में कभी पढ़ा है क्या? हो गया क्या? थैंक यू यार। राइटिंग पैड है ना? बस, थैंक यू यार। सो व्हाट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, मेरा जो सब्जेक्ट है ना, जिसको आप अकाउंट्स बोलते हो, ये पूरा का पूरा बिजनेस के ही कनेक्टेड है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि भाई बिजनेस क्या है, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड टू डू द बिजनेस, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। और ये सब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको थियोरेटिकली पढ़ा सकता है, आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आज तक तुम लोग कभी बिजनेस से कनेक्ट हुए हो? एज ए स्टूडेंट के कभी कनेक्ट हुए ही नहीं हो आज तक। इतने सालों में कभी कनेक्ट हुए हो? हैव यू एवर बीन कनेक्टेड टू बिजनेस? 15-16 साल के हो गए। सो बिजनेस से कभी आप लोग कनेक्ट हुए हो कि बिजनेस से आज तक कभी कनेक्ट हुए ही नहीं हो? अरे हुए हो यार, इतनी होटल में खाना खाने जाते हो, इतनी दुकान में सामान खरीदते हो, और तुम बोल रहे हो तुम बिजनेस से कनेक्ट नहीं हुए। खुद से जाते हो अपने कपड़े का शॉपिंग करने? खुद से जाते हो कि अभी भी मम्मी पापा साथ में चलते हैं? डू पेरेंट्स डू योर शॉपिंग और यू डू योर शॉपिंग? अभी भी? अरे अभी थोड़ा आवाज उठाने का। अरे पैसे देते ठीक है यार, लेकिन मैं मेरे पसंद का कपड़ा पहनेगा यार। मतलब चॉइस करने को तुमको देते हैं कि चॉइस भी उनका ही है? चॉइस देते हैं ना तो ठीक है, वरना थोड़ा थोड़ा आवाज उठाने का। अभी बड़े हो गए हो, खाली मेरा नाम नहीं लेने का। पेरेंट्स झगड़ा करने आ जाते हैं मेरे पास, थोड़ा थोड़ा आवाज उठाने का भी क्या है यार? बचपन से तुम पेरेंट्स जो बोले वो करते रहते हो, तब थोड़ा थोड़ा अपना चॉइस का करने का, उसमें क्या गलत है? तो तुम बिजनेस से गिरे पड़े हो, यहाँ से बाहर निकलो। जहां तुमको जो दुकान दिखेगा, ऑफिस दिखेगा, सब लोग तो बिजनेस ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं ना थोड़ा बिजनेस के बारे में डिस्कस करेगा, थोड़ा तुमको बिजनेस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं सोचना कि तुमको नहीं आता है, बिलीव मी तुमको बिजनेस के बारे में बहुत कुछ आता है। जस्ट दैट तुमने कभी सोचा नहीं रहेगा। आई विल ट्रिगर दैट थॉट इनसाइड यू। अभी तुम मेरे को प्लीज सोच के बोलो, क्योंकि अकाउंट्स क्या है ना, मैं तब तक आपको नहीं समझा पाएगा जब तक अपन लोग थोड़ा बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। एक बार बिजनेस के बारे में बात करेंगे, देन अकाउंट्स इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलो तो सब लोग मुझे प्लीज बताते जाओ कि चलो अपने को अगर बिजनेस करना रहेगा तो बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए। इमेजिन करो, कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब और सिंपल भाषा में बोलो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा देगा कौन? बैंक थोड़ी देगा। अरे यार तुम लोग इमेजिन करो, तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया और अभी तुमको बिजनेस करना है। तुम लोग अभी अभी तुम्हारा पढ़ाई खत्म किया, अभी अभी तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अभी अभी तुम लॉयर बन गए, सीएस बन गए, और अभी तुमको खुद का बिजनेस करना है। तो बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो तुम्हारे पास पैसा किधर से आएगा? अभी तक तो तुम स्टूडेंट हो, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। पैसा कमाना चालू भी किधर किया अभी तक? तो फिर पैसा आएगा किधर से? अरे घर में तो बैठा एक बड़ा इन्वेस्टर। हाँ, पेरेंट्स। परफेक्ट बोला एकदम। उधर इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता है, पैसा वापस नहीं दिया तो भी चलता है। मस्त है, घर में इतना स्ट्रांग इन्वेस्टर बैठा है और तुम कहाँ इधर उधर बैंक वगैरह में देख रहे हो। पेरेंट्स को कन्विंस कर देने का कि भाई मैं तुम्हारा पैसा डुबाएगा नहीं। आई एम अ वेरी वर्दी चाइल्ड, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे पे अभी लगा सकते हो 50 लाख करोड़ रुपया, यू कैन इन्वेस्ट ऑन मी। अभी से पेरेंट्स को बोल देने का, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा पैसा जमा करो, आगे जाके मेरे को बिजनेस करना है, उसके लिए कैपिटल चाहिए। अभी से थोड़ा मम्मी के कान में बात डाल देने का। इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल जनरली ओवर द फादर। डायरेक्ट पापा को बोलने में डर लगता रहेगा तो मम्मी को चोट आ रहेगा, तब से ही बोलते रखने का, देख मैं जॉब वॉब नहीं करने वाला है, मैं किसी का अंडर में नौकरी नहीं करेगा, मैं तो इतना मस्त पढ़ लिख के मेरे को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा तुम लोग नए नए प्रोफेशनल हो तो तुमको क्या लगता है बैंक तुमको ऐसे ही लोन दे देगा क्या? तो ऑब्वियसली वो जानता भी नहीं है तुम लोग कौन हो, क्या हो, तुम्हारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई इनकम नहीं है, क्या बेस पे वो तुमको लोन देगा?
बैंक को लोन भी देना रहेगा तो किसको देगा? पापा को देगा। तो हर केस में पैसा आने वाला किधर से है? पापा के पास से आने वाला। इतना अच्छा बैंकर घर में रहेगा, सेल्फलेस बैंकर, बहुत प्यार करता है अपने को, थोड़ा प्यार करना चाहिए, इस फायदा उठाने का, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपना ही तो बाप है। आई डोंट नो वेदर यू कैन रिलेट टू माई टॉक और नो। इवन इफ यू घर जाके प्लीज पापा को ऐसा बोलना नहीं, अनिश सर ने बोला था, मैं तो तुम लोग से एज ए फ्रेंड बात कर रहा हूँ। आई टॉक टू माई सन ऑल्सो लाइक दैट। तुम लोग 11th में हो, 12th में, तो मैं उसको भी यही सब समझाता हूँ। तो उसमें गलत क्या है? एक उम्र के बाद चाइल्ड ऑलवेज बिकम्स अ फ्रेंड ओनली, तो ही वो आपसे कुल से बात करेगा, वरना वो तुमसे कुल से बात भी नहीं करेगा। मेरे बेटे को तो कोई लड़की भी अच्छी लगती है तो आके पहले मेरे को बोलता है, अपनी माँ को नहीं बोलता है। इसको उम्र है तो मैं उसको डांटता कभी नहीं है। आई गिव हिम द राइट एडवाइस। सीधी बात है ना यार, वरना फिर बच्चा आके कल अपने को नहीं बोलेगा और बाहर पता नहीं वो क्या कर रहा है। वैसे तो अच्छा बच्चा है लेकिन यू नेवर नो दैट। उससे अच्छा मैं उसको बोलता देख कुछ भी रहेगा मेरे को बता देना बेटा, मम्मी से वो डरता है लेकिन मेरे से डरता नहीं है, मतलब बिहेव लाइक ए फ्रेंड। तो मैं तुमसे भी फ्रीली बात करेगा लेकिन घर जाके पेरेंट्स को मेरे नाम पे नहीं बोलने का, वरना मम्मी लोग फिर इधर आ जाती है, कहा सर आपने ऐसे कैसे बोला। तो बिलीव मी, पैसा जो भी तुमको चाहिए ना बिजनेस के लिए, समझो बिजनेस के लिए तुमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो तुमको लगता है पूरा का पूरा 1 करोड़ पप्पा दे सकते हैं? नहीं भी। तो जितना पप्पा से निकाल सकते हो ना, समझो पप्पा से तुम लोग को 60 लाख रुपीज मिल गया। तो ये जो 60 लाख है ना, जो तुमको पप्पा ने दिया, जो तुम अपने घर से लेके आए, इसको हम लोग क्या बुलाने वाले हैं एवरीबॉडी? वी विल कॉल दैट एज अ कैपिटल। मैं ना स्टोरी में एक एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा, बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज दैट वर्ड, तो ही तुमको ये मेरा अकाउंट से समझ में आएगा। तो अकाउंट्स के लिए और थोड़ा टाइम है, 20 मिनट के बाद मैं अकाउंट्स तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इन अ वेरी इनफॉर्मल वे। प्लीज इसके ऊपर फोकस करो। तो मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए मेरे को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा बिजनेस करना है, छोटा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है। सो तुमको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, पूरा 1 करोड़ तो पप्पा नहीं देंगे, तो उन्होंने 60 लाख रुपीस दे दिया। तो जो पैसा आप घर से लेके आते हो, दैट मनी इज कॉल्ड एज कैपिटल। अभी अगर तुम घर से 60 लाख लेके आए ना, तो रिमेनिंग 40 लाख तुमको कौन देगा बताओ? नाउ देर इज समबडी हु विल गिव यू द लोन, क्योंकि तुम घर से 60 लाख लेके आए हो। तो अब तुम रिमेनिंग 40 लाख के लिए किसके पास जा सकते हो एवरीबडी? बैंक के पास जा सकते हो। तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक लोन दे देगा। ऑब्वियसली लोन देने के लिए योर फादर विल हैव टू साइन एज अ गारंटर। भाई मेरे बेटे को लोन दे दो, मेरे बेटे ने अगर ये लोन चुकाया नहीं टाइम पे तो मैं चुका देगा। ऐसे पप्पा को बोलने का मैं तुम्हारा ही बेटा, एक साइन तो करके दो, या तो पूरा 1 करोड़ तुम ही दो। अब तुम्हारे पास नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं रहा है, मेरे को बैंक 40 लाख देने के लिए तैयार है, बट यू विल हैव टू साइन एज अ गारंटर। पप्पा लोग के पास कोई चॉइस नहीं होता है, थोड़ा हाँ ना करके एंड में साइन कर ही देते हैं। उनके पास क्या चॉइस है, अपन उनके बच्चे हैं, तो मस्त साइन करके तुमको दे देंगे। तो 60 लाख है ना, 60 लाख इसको कैपिटल बोलते हैं। 1 करोड़ इज नॉट कैपिटल, 1 करोड़ इज नॉट कैपिटल। 1 करोड़ इज अ टोटल मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू डू द बिजनेस। उसमें से 60 लाख इज अ कैपिटल एंड 40 लाख आपको कोई बैंक लोन दे देगा। ओके और क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए? खाली कैपिटल। जगह तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा बेटा, मतलब जगह इज अ करेक्ट आंसर, बट वो मेरा ऑर्डर में थोड़ा पीछे आता है। सबसे पहले तो बिजनेस करने के लिए कैपिटल तो ऑफकोर्स चाहिए, पैसा के बगैर तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा व्हाट एल्स यू रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस? आइडिया चाहिए। दैट इज गुड। क्लियर होना चाहिए, मुझे क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस चीज का बिजनेस करना है। आप वही बिजनेस कर सकते हो जो बाकी लोग करते हैं, या आप इनोवेटिव भी हो सकते हो। यू आर टुडेज जनरेशन, यू कैन कम आउट विद मेनी आइडियाज जो आज से 30 साल पहले की। हमारे ज़माने में थोड़ी स्विगी ने, जोमेटो ने, ओला ने, उबेर ये सब हुआ करता था। वो काली पीली टैक्सी होती थी जिसमें एसी भी नहीं होता था साला, और टैक्सी मिलती भी नहीं थी। पहले रिक्शा करके टैक्सी स्टैंड में जाते थे हम लोग, फिर वो टैक्सी स्टैंड में टैक्सी मिलती थी।
आज तो कुछ नहीं, मोबाइल उठाया, बुक किया, 5 मिनट में आ गई, मस्त ऐसी गाड़ी आ जाती है। तो किसी न किसी तो तुम्हारी जनरेशन ने ही सोचा रहेगा, हम लोग तो आउटडेटेड हो जाते हैं। बट योर जनरेशन इज वेरी इनोवेटिव, वेरी थिंकिंग। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वही तुमको करना है। एज अ टुडे जनरेशन यू हैव सो मच ऑफ द कनेक्ट टू द टेक्नोलॉजी। हमारे ज़माने में तो मोबाइल ही नहीं था। व्हेन आई डिड माई CA देयर वाज नो मोबाइल, उसके बाद टेक्नोलॉजी आया। तो तुमको उसका एडवांटेज है। टेक्नोलॉजी में टाइम पास नहीं करने का, फेसबुक ने, ट्विटर ने, इंस्टा ने, ये ने, वो ने, आधा एक घंटा ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर प्रोडक्टिवली यूज करोगे, टेक्नोलॉजी इज अ वेरी पावरफुल थिंग दैट कैन हेल्प यू जनरेट सो मेनी आइडियाज। सो आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली। बिजनेस करने के लिए आइडिया चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो फर्स्ट क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए? इनफैक्ट फर्स्ट अपने को आइडिया चाहिए। सेकंड क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए? पैसा चाहिए। पैसा किधर से आएगा? तो 60 लाख का मैं घर से कैपिटल लेके आया, 40 लाख का मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया। अभी समझो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो आप रिलेट कर सकते हो। मुलुंड में एक शॉप है नागरिक स्टोर्स करके, किसी ने सुना हुआ है कि नहीं? किधर है ये? NS रोड से आप जा लेते हो। सो नागरिक स्टोर्स क्या बेचता है वैसे? व्हाट इज सेल्स? सर्विस रेंडर करता है कि कुछ गुड्स बेचता है? मतलब नागरिक स्टोर इज जस्ट वन एग्जांपल। यू कैन टेक एनी अदर शॉप विच इज नियर टू योर रेसिडेंस। तो क्या क्या बेचता है मेरे को बोलो तो? ग्रोसरी बेचता है, गेहूं चोखा वगैरह बेचता है। क्या बात करता है, कुछ भी बोलते हैं यार। नागरिक स्टोर्स में थोड़ी गेहूं और चावल मिलता है। नागरिक स्टोर में क्या मिलता है? स्वीट्स मिलता है और स्नैक्स मिलता है। चॉकलेट मिलेगा ने, बिस्किट मिलेगा ने, वेफर मिलेगा ने, फरसान मिलेगा ने, सो मेनी थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, ब्रेड मिलेगा, छोटी छोटी कितनी सारी चीजें बेचते हैं ये लोग। तो समझो, तुम लोग इमेजिन करो, तुमको ऐसा कोई बिजनेस करना रहेगा या कपड़े का बिजनेस करना रहेगा, कोई भी बिजनेस करना रहेगा, तो कैपिटल आ गया, चल 60 लाख का कैपिटल पापा ने दे दिया, 40 लाख का बैंक ने लोन दे दिया। अभी प्लीज इमेजिन करो और मुझे बताओ नेक्स्ट मैं क्या करूं? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई विल डू? आपको इमेजिन करना है बेटा कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको 1 करोड़ चाहिए था बिजनेस के लिए, 1 करोड़ मिल गया। अब लॉजिकली सोचो, ऑर्डर में, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू विल हैव टू डू? रॉ मटेरियल रखोगे कि हाँ बेटा रोड पे बाकड़ा डालोगे? पहले क्या करना पड़ेगा? एनीबडी? जगह फाइनल करना पड़ेगा। डू यू एग्री? समबडी टोल्ड ना जगह का, तो अभी जगह फाइनल करना पड़ेगा। जगह फाइनल करना पड़ेगा मतलब क्या करोगे? जगह परचेस करोगे कि जगह भाड़े पे लोगे? क्यों परचेस करना? एग्जैक्टली। और 1 करोड़ में भी किधर मुलुंड में जगह मिलता है यार? एक छोटे से छोटा दुकान लेने जाओ तो 2 करोड़ 3 करोड़ है मुलुंड में। तो पूरा का पूरा पैसा तुम्हारा अगर जगह में ही चले जाएगा तो गुड्स किधर से परचेस करोगे? फर्नीचर किधर से बनाओगे? तो बिलीव में जगह खरीदना रहेगा तो 5 करोड़ चाहिए। और वैसे भी नया नया बिजनेस कर रहे हो ना, तो डायरेक्टली जगह खरीदना भी नहीं चाहिए। पहले एक बार नया बिजनेस ले रहे हो तो जगह आपको भाड़े पे लेना चाहिए। तो समझो तुमने जगह फाइनल कर दिया, तो आपने एक जगह फाइनल कर दिया, वो जगह आपने भाड़े पे भी ले लिया, रेंट भी डिसाइड हो गया। रेंट है इसका 1,50,000 रुपीज़ पर मंथ। 1 महीने का भाड़ा। आपने मस्त मुलुंड में एक अच्छा मार्केट में जगह देख लिया छोटा सा, उसका भाड़ा भी डिसाइड हो गया, 1,50,000 पर मंथ। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लॉजिकली क्या क्या करोगे। अब कोई मुझे बताएगा जगह अगर भाड़े पे लेना रहेगा, देन देयर इज समथिंग दैट यू विल हैव टू गिव टू द लैंडलॉर्ड। किसी को पता है प्रैक्टिकली? डिपॉजिट देना पड़ता है। यू विल हैव टू गिव समथिंग कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आपको है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट करके देना पड़ता है। अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल इट इज 10 लाख रुपीज। क्यों देते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट? वाई वी आर सपोज टू गिव सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द ओनर ऑफ दैट प्लेस। जिसका भी ये जगह रहेगा, जो भी ओनर है, जो भी लैंडलॉर्ड है, उसको आपको डिपॉजिट क्यों देना पड़ेगा?
वेरी गुड। उसका दुकान भाड़े पे ले रहे हैं, समझो उसका दुकान अपन ने डैमेज कर दिया या हमने उसको भाड़ा टाइम पे नहीं दिया, तो उसके पास एक 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी होना चाहिए ताकि उसमें से वो ये सारा रिकवर कर ले। यूर देयर विथ मी ना, यू थिंक आई एम गोइंग फास्ट और दिस पेस इज ओके? समझ रहे हैं ना, मेरे साथ रहे ना प्लीज। तो लोग बहुत नींद में लगते हैं मेरे को, आई नो, मतलब 1-1.5 महीने के बाद अचानक सुबह जल्दी उठ के आ जाना। 1.5 महीने से तो लेक्चर भी सुना नहीं रहेगा ना किसी का। लास्ट लेक्चर कभी सुना था? जनवरी में 10th में पढ़ रहे थे तभी ना। 10th का भी पोर्शन तो तुम लोग का हो जाता है ना, नवंबर दिसंबर तक हो जाता है। वो 3-4 महीने से ऐसा लेक्चर नहीं सुना रहेगा। सो सम ऑफ यू आर लाइक बट इट्स ओके, बट यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? ओके, चलो अभी बताओ नेक्स्ट क्या करूं। जगह भी फाइनल कर लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे दिया 10 लाख रुपया, भाड़ा भी डिसाइड हो गया कि भाई हर महीने मेरे को रेंट देना है एंड दैट इज 1,50,000। अब क्या नेक्स्ट क्या करूं? नंबर 4, देख मैं लॉजिकल स्टेप्स लिख रहा हूं। नंबर 1, आइडिया डिसाइड करो भाई किस चीज का बिजनेस करना है। नंबर 2, पैसे का अरेंजमेंट करो, थोड़ा घर से कैपिटल लेके आओ, थोड़ा बैंक से लोन ले लो। नंबर 3, बिजनेस का जगह फाइनल करो, उसका डिपॉजिट दे दो 10 लाख रुपया, उसका भाड़ा भी डिसाइड हो गया, हर महीने का 1.5 लाख रुपया देना है। अब मेरे को लॉजिकल स्टेप्स चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं चलेगा, मेरे को लॉजिकल स्टेप नहीं। एडवर्टाइजमेंट इज रॉन्ग, गुड्स इज ऑल्सो रॉन्ग। मशीनरी फैक्ट्री में होता है बेटा, दुकान में नहीं होता है। मशीनरी कब होता है? जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो। अब ये जो नागरिक स्टोर का आपको एग्जांपल दिया, तो ये थोड़ी कुछ गुड्स बनाता है, ये तो गुड्स खरीदेगा और गुड्स ही बेचेगा। डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदेगा 10 रुपए में, अपन लोग को 20 रुपए में बेचेगा। मशीनरी किसका होता है मालूम है? जो लोग प्रोडक्शन करते हैं। ये प्रोडक्शन वर्ड समझते हो ना? आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, मतलब कपड़ा खरीदा और कपड़े में से आपने टी शर्ट बनाया, वो लोग मशीनरी खरीदते हैं। और ये नागरिक स्टोर्स वाला थोड़ी मशीनरी खरीदेगा। चलो एनीबडी, जगह फाइनल कर दिया, अभी लॉजिकली क्या करूं? एडवर्टीजमेंट इज अ रॉन्ग आंसर, गुड्स इज अ रॉन्ग आंसर। मेरे को थोड़ा लॉजिकली स्टेप्स चाहिए। दुकान भाड़े पे ले लिया, दुकान का चाबी भी मिल लिया, अभी तुम बोल रहे हो गुड्स खरीदोगे, और गुड्स खरीद के रखोगे कहाँ? जैसे जमीन पे चद्दर बिठा दोगे दुकान के अंदर और मस्त उसके ऊपर गुड्स रखोगे। आर यू गोइंग टू डू लाइक दैट? एनीबडी? फर्नीचर बनाना पड़ेगा। खाली दुकान खरीद लिया उससे क्या होता है यार? आपको ये सब सामान रखने के लिए मस्त तुमको दुकान में इंटीरियर वर्क करवाना पड़ेगा, फर्नीचर बनाना पड़ेगा। नावेडेज यू नीड एयर कंडीशनर, सो एयर कंडीशनर डालना पड़ेगा। कंप्यूटर चाहिए अकाउंटिंग वगैरह के लिए, तो आप कंप्यूटर खरीदोगे। सीसीटीवी चाहिए, आजकल तो अब देखो हर छोटी से छोटी दुकान में सीसीटीवी रहता है, तो सीसीटीवी चाहिए। तो मतलब आपको क्या करवाना पड़ेगा? यू नीड फर्नीचर, you need air conditioner, you need air conditioner, you need CCTV, you need computer और लैपटॉप एक्सेट्रा। तो ये सब मिला के समझो तुम्हारा 25 लाख रुपया तो पूरा दुकान का इंटीरियर बनाने में और रिनोवेशन करने में चला गया। तो तुम्हारा अभी ये हो गया नंबर 4। सो व्हाट वाज नंबर 1? डिसाइड व्हाट बिजनेस यू वांट टू डू, आइडिया। नंबर 2, पैसे का इंतज़ाम करो, क्योंकि जब तक पैसे का इंतज़ाम नहीं करोगे बिजनेस नहीं कर सकते। नंबर 3, प्लेस फाइनलाइज करो। नंबर 4, पूरा दुकान में इंटीरियर करो और उसको रेडी करो। चलो एनीबडी, व्हाट इज स्टेप नंबर 5? लेबर मतलब ऑब्वियसली आपको 2-3 जन को जॉब पे रखना पड़ेगा। सामान खरीद लोगे फिर सामान रखेगा कौन? यू आर द प्रोपराइटर। तो आप अकेले थोड़ी पूरा दुकान चला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, 2 जन को आपको रखना पड़ेगा। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 5? तुरंत से एम्प्लॉइज को फाइनल करना पड़ेगा। समझो तूने 2 एम्प्लॉय को फाइनल किया, एक का सैलरी है 20,000 रुपीज़ पर मंथ, दूसरे का सैलरी है 18,000 पर मंथ। ऐसे 2 लोगों को तुमने जॉब दे दिया, मतलब तुम्हारे दुकान में काम करने के लिए 2 लोगों को फाइनल कर दिया। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 5। एनीबडी? अब क्या करूँ? एग्जैक्टली अभी गुड्स को आप क्या करोगे? परचेस करोगे। कोई मुझे बता सकता है एक दुकानदार गुड्स कहाँ से परचेस करता है?
Is he going to purchase the goods from retailer? Is he going to होलसेलर एग्जैक्टली या तो वो डायरेक्टली किससे परचेस कर सकता है? मैन्युफैक्चरर। तो या तो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करेगा या तो होलसेलर से परचेस करेगा, तो उसको वो गुड्स सस्ते में मिलेगा। ये दुकानदार को आप क्या बुलाते हो वैसे? रिटेलर एग्जैक्टली। और वो जिसको गुड्स बेचता है उसको क्या बुलाते हो आप लोग? कस्टमर ऑब्वियसली। तो मैं रिटेलर है, मैं होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदेगा। तो समझो मैंने 30 लाख का गुड्स परचेस कर दिया, मस्त वो गुड्स परचेस करके मेरी दुकान पूरी भर दी मैंने, मस्त मेरे पास वो 2 लोग भी आ चुके हैं, उनकी हेल्प से पूरा दुकान में पूरा सामान सजा दिया और मस्त मेरा दुकान रेडी हो गया। बोलो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई विल डू? स्टेप नंबर 7। अच्छा 6 तक बोलो तो क्या है? देखो तो सही कितने लोग जाग रहे हैं। चल 6 तक क्या है? बोलो व्हाट इज फर्स्ट वन? एवरीबडी आइडिया। व्हाट इज सेकेंड वन? मनी का अरेंजमेंट करने का। थोड़ा मनी विल बी कैपिटल और थोड़ा बैंक लोन, तो ये पैसा हो गया। व्हाट इज द थर्ड वन? क्या फाइनल करने का? प्लेस फाइनल करने का। नंबर 4 क्या है? फर्नीचर वगैरह करवाने का। नंबर 5 क्या है? एम्प्लॉय को हायर करने का। नंबर 6 क्या है? गुड्स परचेस करने का। वेरी गुड। आप बोलो आगे चल। एम्प्लॉय भी फाइनल हो गया, मेरा फर्नीचर वगैरह भी रेडी हो गया, गुड्स भी खरीद लिया, गुड्स मस्त पूरी दुकान में एकदम मस्त ढिमचक सजा दिया दुकान को। अब क्या करूं? प्रमोशन एग्जैक्टली। अब तुमको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा? तुमको अपने बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। सो प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, आपको ग्रैंड ओपनिंग रखना पड़ेगा। ओपनिंग शब्द समझते हो? किसी नई दुकान का ओपनिंग मतलब समझते हो? तो उसकी वजह से क्या होगा? आपको लोकल एरिया में, जिस एरिया में तुमने शॉप ओपन किया रहेगा उस एरिया में आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। मस्त ग्रैंड ओपनिंग रखो ताकि आजू बाजू से 100-200 लोग आएंगे, देखेंगे, अरे इधर नया होटल खुला है, अरे इधर नया दुकान है, तो ही अवेयरनेस क्रिएट होगा। तो उसके बाद क्या करोगे? चलो तुमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया, प्रमोशन भी कर दिया, ग्रैंड ओपनिंग भी हो गया। अब क्या होने वाला है बताओ? अब तुम्हारा बिजनेस वेल एंड ट्रूली स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा दुकान भी रेडी है, इंटीरियर भी रेडी है, लोग भी आ चुके हैं, सामान भी रेडी है, तुमने मार्केटिंग भी कर दिया, प्रमोशन भी कर दिया, ओपनिंग भी कर दिया। अब डेली बेस पे क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन इन योर शॉप डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ? टेल मी, आपके दुकान में डेली क्या होने वाला है? गुड्स क्या करोगे? सेल करोगे। अब क्या करोगे? गुड्स को सेल करोगे, गुड्स को परचेस भी करोगे, क्योंकि सेल करोगे ना तो गुड्स खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो दोबारा परचेस करोगे, परचेस करोगे तो वापस सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगा तो वापस परचेस करोगे। तो ये जो है ना गुड्स को सेल करना, गुड्स को परचेस करना, ये राउंड द ईयर चलता ही रहता है पूरा साल। जैसे सुबह दुकान स्टार्ट करोगे, एक एक करके तुम्हारी दुकान में कस्टमर आ रहा है, सामान खरीद रहा है, जो भी सामान खत्म हो गया तुम उसका ऑर्डर प्लेस करोगे, नया सामान परचेस करोगे। ऐसे करते करते ऐसे इमेजिन करो कि मैंने साल भर में 90 लाख का गुड्स खरीदा और यही 90 लाख का गुड्स मैंने 1.5 करोड़ में बेच दिया। एक ही दिन में नहीं होएगा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। 90 लाख का पूरा सामान खरीदा पूरे साल में। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल ईयर। 90 लाख का सामान खरीदा, 1.5 करोड़ में बेच दिया। यानी ऐसे में प्रॉफिट इज 60 लाख रुपीस। इज दिस माई प्रॉफिट? आर यू श्योर? नो वे। ये जो है ना, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं पता है बिजनेस में? ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो 60 लाख रुपीस है ना, 1.5 करोड़ में सामान बेचा, 90 लाख में सामान खरीदा, दोनों का जो डिफरेंस है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 60 लाख। ये थोड़ी मेरा प्रॉफिट है। एनीबडी? क्यों ये मेरा प्रॉफिट नहीं है? एक्सपेंसेस होएगा, खर्चा होएगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना बेटा, इसको अपन इनकम बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल दैट? एज अ इनकम। लेकिन सामने बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। कैन यू टेल मी
एक नागरिक स्टोर जैसा एक दुकान इमेजिन करो और इमेजिन करके अलाउ योर इमेजिनेशन टू गो एंड टेल मी कि वो दुकान के लिए मुझे क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा. व्हाट आर द वेरियस एक्सपेंसेस आई विल हैव टू इनकर. सैलरी, एक एक करके बोल, मैं लिखता हूं बेटा. सैलरी, आपने वो 2 लोगों को जॉब पे रखा था, याद है? एक का सैलरी महीने का 20,000 था, दूसरे का सैलरी 18,000 था. वो दोनों को हर महीने सैलरी देना पड़ेगा. ये सैलरी तुमको हर महीने देना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा एक्सपेंस हो गया. ऐसे करके पूरे साल में तुम्हारा 4 लाख रुपए का सैलरी है, बिकॉज एवरी मंथ पे करोगे. 20,000 18,000 पे करोगे. दिवाली के टाइम पे वो एम्प्लॉय लोग को बोनस देना पड़ता है. सब मिला के टोटल मारा 4 लाख रुपए का मेरा सैलरी हो गया. चलो, एनीबडी? और बहुत सारे रेंट अपन ने डिसाइड किया था. अपन पूरा कितना रेंट पे करेंगे पता है? 18 लाख का रेंट पे करेंगे. डू यू रिकलेक्ट इन माई एग्जाम्पल हमने क्या रेंट डिसाइड किया था? 1 महीने का रेंट कितना? 1.5 लाख का रेंट रहेगा. तो अगर 1 महीने का 1.5 लाख का रेंट रहेगा तो मैं 12 महीने से डिवाइड करेगा, मतलब 18 लाख का रेंट मेरे को पे करना पड़ेगा. तो मैं एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा करके रेंट पे करूंगा. और भी बहुत एक्सपेंस है यार. इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली, मैं थोड़ी मोमबत्ती जला के दुकान चलाएगा. मस्त मेरी दुकान में कंप्यूटर है, सीसीटीवी है, एयर कंडीशनर है, मस्त ढिमचाक लाइट रहेगा. तो हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा. समझो इलेक्ट्रिसिटी का 2 लाख रुपए का बिल आएगा. समझो 15,000 रुपया, 16,000 रुपया महीने का, 12 महीने का 2 लाख का इलेक्ट्रिक का बिल आ जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो माई एक्सपेंस. और भी है यार. बैंक का लोन लिया था तो आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सुपर्ब. सो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. आपने याद है वो 40 लाख रुपए का लोन लिया था. बाप ने पूरा पैसा नहीं दिया था, खाली 60 लाख रुपया दिया था. 40 लाख बैंक से लोन लिया था. उसके ऊपर आपको एवरी मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो समझो आपने 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया. और भी है. ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा. आप खुद इधर से उधर जाओगे तो उसका ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा. आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस पे करना पड़ेगा. और भी है. नहीं, और एक खर्चा था मस्त अपन ने किया था, तुम भूल गए हो. दुनिया को पता कैसे चला? एडवर्टाइजमेंट. एग्जैक्टली. तो मैंने एडवर्टाइजमेंट किया था, प्रमोशन किया था, तो उसका भी मेरे को खर्चा लगेगा. और भी कुछ है. स्टेशनरी ऑब्वियसली. अब दुकान लेके बैठे हो तो स्टेशनरी रहेगा. कस्टमर लोग आएंगे तो उसको सामान डालने के लिए आप कुछ बैग्स वगैरह देते रहोगे, तो उसका खर्चा हो जाएगा. दुकान को आप क्लीन करवाओगे तो क्लीनिंग वगैरह का खर्चा हो जाएगा. ये क्लीनिंग वगैरह का जो खर्चा रहता है ना, उसको ये लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस करके बोलते हैं. फिर आपका एसी, कंप्यूटर वगैरह का आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा. उसको आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोलते हो. क्यों ना आपको एसी, कंप्यूटर वगैरह का सर्विसिंग करवाना पड़ता है. कंप्यूटर के अंदर एक एंटीवायरस बिठाना पड़ता है. ऐसा मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर को, एसी को अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए आपको वो सब एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. बिलीव मी, इसमें और बहुत सारा है. जैसे जैसे सोचते जाओगे, सो इसको मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ. एक्सेट्रा. देख कितने हो गए, फिर भी एक बार करते हैं रिवाइज. सैलरी, दुकान का भाड़ा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक से लोन लिया उसका इंटरेस्ट, गुड्स को इधर उधर करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मैं खुद इधर से उधर जाएगा तो ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा, कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, कुछ एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का खर्चा है, कुछ स्टेशनरी बैग्स वगैरह चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एंड दिस इज अ बिग लिस्ट. तो देख, अब जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना. डू यू रिमेंबर कि मैंने टोटल कितना गुड्स बेचा था? व्हाट वाज दैट अमाउंट? 1.5 करोड़. तो 1.5 करोड़ का गुड्स मैंने बेचा. उसमें से मैं क्या माइनस करेगा मालूम है? परचेस ऑफ गुड्स. मैं खुद कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, मैं तो गुड्स परचेस करता हूँ, होलसेलर से गुड्स परचेस करता हूँ और कस्टमर को गुड्स बेचता हूँ. सो डू यू रिकलेक्ट इन आवर एग्जाम्पल, हमने जो गुड्स परचेस किया था 90 लाख एग्जैक्टली, तो मुझे 60 लाख का क्या मिला था? ग्रॉस प्रॉफिट. इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं. फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से है ना, हम सब एक्सपेंसेस को
डिडक्ट करते हैं, सब मिला के मेरा 40 लाख का एक्सपेंसेस हो गया। सैलरी पे किया, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिक का बिल दिया, एडवर्टीजमेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन, इतने सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी, सब मिला के 40 लाख का मैंने एक्सपेंस कर दिया। अब मुझे फाइनली कितना मिला? 20 लाख मिला। इस 20 लाख को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। हाँ, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मैंने पैसा कमाया, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। क्योंकि मेरे को सैलरी तो मिलता नहीं है ना। सैलरी किसको मिलता है मेरे को बोलो? जो जॉब करता रहता है। मैं तो जॉब नहीं कर रहा है, मैं तो बिजनेस कर रहा है। यू नो द पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोपराइटर। उसको बोलते हैं सोल प्रोपराइटर। आई डोंट नो, ये वर्ड सुना है कभी? पार्टनर रहता है, ये है सोल। सोल मतलब क्या हुआ? सिंगल पर्सन, अकेला इज द प्रोपराइटर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोपराइटर? एवरीबडी ओनर ऑफ द बिजनेस। मैं किसी बिजनेस का मालिक हूं, मैंने ही बिजनेस स्टार्ट किया है, तो थोड़ी मेरे को सैलरी मिलेगा। लेकिन सैलरी नहीं मिला तो सैलरी की जगह पे मुझे क्या मिलेगा? देन आई विल गेट प्रॉफिट। Now I am introducing the next word to you. ये वर्ड तुम लोग में से किसी ने यूज किया था? Who used this word? ट्रांजैक्शन आपने बताया था। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन बता रहा हूं। What is transaction? You know, ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल तो तुमने ही मुझे बता दिया। इतनी देर से हम जो भी बात कर रहे हैं ना, ये सब ट्रांजैक्शन है। घर से 60 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया, ट्रांजैक्शन। बैंक से 40 लाख का लोन लिया, ट्रांजैक्शन। दुकान भाड़े पे लिया, दुकान का 10 लाख रुपया डिपॉजिट दिया, ट्रांजैक्शन। दुकान के अंदर फर्नीचर वगैरह का काम करवाया, 25 लाख रुपया डाल दिया, ट्रांजैक्शन। गुड्स परचेज किया, ट्रांजैक्शन। मार्केटिंग किया, एडवर्टाइजमेंट किया, ट्रांजैक्शन। गुड्स को बेचा, ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रिक का बिल पे किया, ट्रांजैक्शन। प्रॉपर्टी का रेंट पे किया, ट्रांजैक्शन। बैंक को इंटरेस्ट पे किया, ट्रांजैक्शन। स्टेशनरी पे किया, ट्रांजैक्शन। इधर से उधर गया, ट्रैवलिंग का खर्चा किया, ट्रांजैक्शन। आई मीन यू नेम इट एंड इट इज ट्रांजैक्शन। तो तुम बोलोगे यार सर ये सब समझ गया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन है क्या? ये तो सारे एग्जाम्पल है। तो अब मैं आपको ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन बता रहा हूं। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स, नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Number 2, for money or money's worth. Number 3, between 2 or more persons। ये एक्चुअली ये 1 2 3 नहीं है, ये तुम्हारे समझने के लिए है। ये है ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन, जो तुमको 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में पूछते हैं ये लोग। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स। 3 चीजें होनी चाहिए अगर आप उसको ट्रांजैक्शन बोलना चाहते हो। व्हाट इज नंबर 1 एवरीबडी? ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो मैं गुड्स बेचूंगा या तो मैं सर्विसेज देगा। सो ये ट्रांजैक्शन का फीचर नंबर 1 है। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकेंड फीचर ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हाई डू यू डू दिस ट्रांसफर? फॉर मनी और मनी इज वर्थ। फ्री में थोड़ी कर रहा हूं भाई, बिजनेस कर रहा हूं। आदमी बिजनेस क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए करता है। मैं थोड़ी चैरिटी की बात कर रहा हूं।
चैरिटी इज नॉट बिजनेस। मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस के ट्रांजैक्शन की। तो फीचर नंबर 2, इट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 लोग तो चाहिए कि नहीं? इमेजिन करो, आई वॉन्ट टू डू ट्रांजैक्शन विद दिस कंप्यूटर, कैन आई डू दैट? नहीं। क्यों? आई वॉन्ट टू डू ट्रांजैक्शन विथ कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर को गुड्स बेचना चाहता हूं, लेना, इसे क्या करते हैं? कैन आई डू दैट? क्यों? बिकॉज ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। मैं अकेला थोड़ी खुद के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। सो दैट इज अ थर्ड एंड द लास्ट फीचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इट हैज टू बी बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। बोलो तो ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन, अब बोलो। ट्रांजैक्शन involves 3 things. What is first? Transfer of goods or services for money or money's worth between 2 or more persons. याद रहेगा? ओके, अभी आते हैं लास्ट पॉइंट, बुक कीपिंग। ये तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है, बुक कीपिंग, जिसको तुम लोग रफली अकाउंट्स करके बुलाते हो। एनीबडी नोज व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग, बुक को उठाओ और डेस्क पे रख दो। मैंने बुक को रख दिया, बुक कीपिंग। इज दैट द मीनिंग? Obviously no. So what is bookkeeping, everybody? हाँ, अब मैं इसका डेफिनेशन बताऊं। Bookkeeping is an, see there are different definitions. आपने जो भी सीखा रहेगा वो करेक्ट ही रहेगा, but I will give you the best definition of bookkeeping. ध्यान से सुनना। Bookkeeping is an art of recording. What is art, everybody? Kala, exactly. Cooking is an art. Teaching is an art. Singing is an art. Kala. So bookkeeping भी एक कला है। Bookkeeping is an art of recording business transactions. मतलब क्या रिकॉर्ड करते हो? What do you record, everybody? You record something called as a business transactions. ये business transactions को आपको रिकॉर्ड करना है in the scientific manner. कैसे रिकॉर्ड करना है everybody? Scientific manner, so that up to date information is available. See, there are many definitions of bookkeeping, but this is one of the definition that I like very much because this conveys all the features of bookkeeping. What is bookkeeping, everybody? जिसको आप अकाउंट्स करके बुलाते हो रफली। Bookkeeping is an art of recording business transactions. और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप जैसे तैसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देर आर सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट यू आर सपोज टू फॉलो। सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द साइंटिफिक मैनर सो दैट अप टू डेट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। देख, एक बंदा बिजनेस करता रहता है ना, तो उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? से इमेजिन करो तुम बिजनेस कर रहे हो, तो देख बिजनेस करते हो ना, तो अपन इतने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को थोड़ी मेमोराइज कर सकते हैं।
डेली कस्टमर आता है, मेरे दुकान में से गुड्स परचेज करता है, मैं उसको सेल करता हूँ, मैंने गुड्स खरीदा, मैंने गुड्स बेचा, मैंने भाड़ा चुकाया, इंटरेस्ट चुकाया, बैंक से लोन लिया। बिलीव मी, एक छोटे से छोटे बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट हैपन्स इन एवरी बिजनेस। आप उन ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकते। आपको सारे ट्रांजैक्शन को एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करना रहता है, और ये जैसे तैसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देयर आर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करना है ताकि आप उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करो। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ recording business transactions in the scientific manner so that up-to-date information is available. अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप एक बिजनेसमैन हो, तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस करने के लिए? क्योंकि बिजनेस करने के लिए ना बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ही आप बिजनेस में एक्शन ले सकते हो, तो ही आप बिजनेस में डिसीजन ले सकते हो। राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन अगर मुझे लेना है तो डेफिनेटली मेरे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे बुक्स में से, जहां उस बुक्स के अंदर सारे ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से, बहुत साइंटिफिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखा है, ताकि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बुक ओपन करके 2 मिनट में मुझे वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल तो बहुत लोग बुक में नहीं लिखते, कंप्यूटर में लिखते हैं। पुराने ज़माने में, आज भी कुछ लोग बुक में भी लिखते हैं, पर धीरे धीरे तुम लोग को पता चलेगा एज यू विल ग्रो इन कॉमर्स कि बड़ी बड़ी कंपनियां कोई बुक में मैन्युअली नहीं लिखती, कंप्यूटर में ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, जिसकी वजह से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, up to date information on a click of the button at any given point of time. But the question that I am asking is, एक बिजनेसमैन को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है? What do you think? What all information a businessman may require? Anybody? सोचो सोचो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुमको बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए इंफॉर्मेशन? कस्टमर, मतलब आप बोल रहे हो कि मुझे पता चलना चाहिए बुक्स में से कि कौन सा गुड्स मेरा ज्यादा बिक रहा है, कौन सा गुड्स मेरा कम बिक रहा है, कौन से गुड्स में प्रॉफिट मार्जिन कम है, कौन से गुड्स में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे बुक्स में से मिल जाएगा। वेरी करेक्ट व्हाट यू सेड, लॉट ऑफ मोर इंफॉर्मेशन एक बिजनेसमैन को। व्हाट इज द सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन दैट ही रिक्वायर, जिसके लिए वो बिजनेस कर रहा है? बिजनेस क्या के लिए कर रहा है यार? पैसा मतलब क्या? प्रॉफिट। तो कैसे पता चलेगा? ये अपन ने जो अभी बात किया ये वाले एग्जाम्पल में कि 1.5 करोड़ का गुड्स बेचा, कहां से पता चलेगा 1.5 करोड़ का गुड्स बेचा? कौन बताएगा? रिकॉर्ड रखा था, उसके लिए तो रिकॉर्ड रखा, तो पता चला 1.5 करोड़ का गुड्स बेचा, 90 लाख का गुड्स खरीदा, 60 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, सब मिला के 40 लाख का खर्चा हो गया, तो 20 लाख का प्रॉफिट होएगा। ये तो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है। मैं बिजनेस कर ही रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा ओरली थोड़ी पता चलता है यार। जब तक आप उसको पेपर पे लिखोगे नहीं, अच्छे से उसको रिकॉर्ड करोगे नहीं, रिकॉर्ड करके टोटल मारोगे तो पता चलेगा टोटल मैंने इतना रेंट पे किया, इतना सैलरी पे किया, इतना एडवर्टीजमेंट पे किया, इतना इंटरेस्ट पे किया, इतना मार्केटिंग पे किया, फिर उसका टोटल मारा तो पता चला कि 40 लाख का टोटल खर्चा हो गया। ये सब थोड़ी ओरली पॉसिबल है। कितना भी तेज रहेगा तुम्हारा दिमाग, ये ओरली पॉसिबल नहीं है। सो यू वांट इंफॉर्मेशन कि भाई मेरे को प्रॉफिट कितना है,
भाई मेरा एक्सपेंसेस कितना है, मैंने कितने का गुड्स बेचा, कितने में खरीदा था, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना खर्चा हो गया, कितना नेट प्रॉफिट हो गया। आई मीन बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से मिलता है क्योंकि आपने सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया है। और भी है यार, और भी देयर इज सम मोर इंफॉर्मेशन दैट यू मे रिक्वायर। एनीबडी? सोचो सोचो, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। तो वो तो आपको बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं मिलता है, वो तो आपको मार्केट सर्वे करने से मिलता है। क्या मार्केट के टच में रहोगे? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट से चलो मैं बताता हूँ। मे बी योर माइंड इज करंटली नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस पॉइंट। मैं ही बता देता हूँ। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट को कितना इनकम टैक्स पे करना है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन से कस्टमर से मुझे कितना पैसा लेना है। हो सकता है आपने किसी कस्टमर को उधारी में गुड्स बेचा रहेगा, क्रेडिट में गुड्स बेचा रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस पॉलिसी। हर बिजनेसमैन क्रेडिट नहीं देता। फॉर एग्जांपल मैं हमारी बात करूं, हम लोग कोचिंग क्लास वाले हैं, हम लोग थोड़ी पूरा फीस आपसे एडमिशन के टाइम पे ही लेते हैं। अब मेरे पास मुलुंड में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को थोड़ी याद रहने वाला है कि कौन से बच्चे ने अभी तक कितना फीस पे कर दिया है और कितना फीस पे करने का बाकी है। हम तो आपको मास इंस्टॉलमेंट बना के देते हैं कि भाई अब हर महीने थोड़ा थोड़ा फीस पे कर सको, ताकि एक साथ आपके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। If your fees is for example 75,000, we will tell you 10 महीना पे करो, every month you pay 7,500। तो मेरे को थोड़ी याद रहेगा कोई कस्टमर ने कम भरा रहेगा, किसी स्टूडेंट ने ज़्यादा पे किया रहेगा, ये सब थोड़ी हम लोग याद रख सकते हैं। वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स कि भाई कौन से स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया, जब उसने उस कोर्स में एडमिशन लिया तो टोटल फीस कितना था, वो टोटल फीस में से उसने कितना फीस भर दिया, कितना फीस फ्यूचर में चाहिए। ये सब भी तो इंफॉर्मेशन है जो एक बिजनेसमैन को चाहिए। एज अ बिजनेसमैन आई नीड इंफॉर्मेशन। किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, साल भर में मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया, साल भर में मैंने मार्केटिंग पे कितना खर्चा किया, साल भर में मैंने ट्रैवलिंग पे कितना पैसा खर्चा किया, कितने का गुड्स खरीदा, कितने का गुड्स बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना गवर्नमेंट को टैक्स भरने का है, बैंक को मैं आज तक कितना लोन रीपे कर चुका हूँ, बाद में कितना लोन बैंक को पे करने का बाकी है। बाप को तो मैं पे करने वाला हूँ ही नहीं, तो उसको मैं नहीं गिनेगा, लेकिन बैंक को तो मेरे को पे करना पड़ेगा। साला तुम लोग में से कोई जाके पेरेंट्स को अगर ये एग्जांपल मेरा वाला दिया ना, देख लेना, देख मैं तुम लोग से एकदम एज योर यू नो आई एम ऑल्सो योर फादरली फिगर। माई एज इज 53 बट आई एम टॉकिंग टू यू लाइक ए फ्रेंड। साला घर जाके किसी ने बोला ना ये कि बाप का पैसा वापस नहीं देने का रहता है, नहीं देने का रहता है, वो फैक्ट है। ये मैं तुमको ईमानदारी से बोलेगा, मैं भी मेरे बेटे को जो भी कैपिटल देने वाला हूँ क्योंकि उसको बिजनेस ही करना है, मैं आज से ही जानता हूँ कि पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है यार, बेटा है, ठीक है, इट्स ओके, एवरी पेरेंट थिंग्स लाइक दैट। घर जाके ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना। सो बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। यू फॉलो नो व्हाट आई एम टॉकिंग। और इंफॉर्मेशन मिलेगा किधर से? याद करके। मस्त बादाम खाऊंगा, याद आ जाएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा? ऑब्वियसली नो। ये इंफॉर्मेशन मिलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट से। सो यस, दिस इज द लास्ट डेफिनेशन दैट आई एम कंक्लूडिंग। व्हाट इज द लास्ट डेफिनेशन एवरीबडी? बुक कीपिंग। चलो बुक कीपिंग का डेफिनेशन बता दो एवरीबडी। बुक कीपिंग एक कला है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ recording business transactions in the scientific manner so that up-to-date information is available. Transaction याद है कि भूल गए? Transaction, anybody? Transaction involves transfer of goods or services for money or money is worth between two or more persons. Bookkeeping. Bookkeeping is an art of recording
business transactions in the scientific manner so that up to date information is available. तो देख, इतनी देर में मैंने तुमको बहुत सारे टर्म्स बता दिए. ये वो टर्म्स हैं जो बिजनेस में भी यूज होते हैं और अपने सब्जेक्ट में भी मैं डेली बेसिस पे यूज करूंगा. इन 11th स्टैंडर्ड ये क्या क्या टर्म्स हो गए, चलो इसको अभी अपन रिकैप करते हैं, कंक्लूड टुडे सेशन. द फर्स्ट टर्म दैट वी स्पोक अबाउट इज बिजनेस. सेकेंड टर्म दैट वी स्पोक अबाउट इज द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस. प्रोपराइटर का दूसरा नाम है ओनर. थर्ड टर्म वी स्पोक अबाउट इज गुड्स. एनीबडी, व्हाट इज गुड्स? गुड्स मतलब क्या? जो तुम ये एसी मेरे लिए गुड्स है क्या? ये क्यों बेच नहीं रहे? तो गुड्स मतलब क्या? गुड्स इज अ कमोडिटी विच इज परचेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट ऑफ. फिर चौथा टर्म अपन ने क्या सीखा एवरीबॉडी? फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट का मतलब ये चेयर क्या, ये फिक्स्ड है क्या? किधर फिक्स है? तो हिलता है देख. So is it a fixed asset? Of course yes. ए फिक्स मतलब ऐसे दीवार में फिक्स्ड वाला फिक्स नहीं है भाई. फिक्स्ड एसेट मतलब दोस एसेट विच आई एम यूजिंग इन माय बिजनेस, जिसको मैं बेचने वाला नहीं हूँ. ऑब्वियसली ये चेयर, ये टेबल, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू यूज इन माय बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट हो गया. नेक्स्ट टर्म अपन ने क्या सीखा एवरीबॉडी? ट्रांजैक्शन. चल फॉर वन लास्ट टाइम, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन involves transfer of goods or services for money or money's worth between two or more persons. Superb. And the last definition with which I am concluding is called as a bookkeeping. Bolo, what is bookkeeping everybody? Bookkeeping is an art of recording business transactions in the scientific manner so that up to date information is available. तो ये जितना भी तुमको बताया ना वो सब तुमको शीट के अंदर दिया हुआ है. आप इसको गो थ्रू करोगे, इट इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी डिस्कस. हाँ, तो अब तुम 11th में क्या सीखने वाले हो? लास्ट पॉइंट एंड देन आई एम वाइंडिंग अप बिकॉज आई हैव अनदर लेक्चर. मुझे बताओ आप 11th में इस सब्जेक्ट में क्या सीखने वाले हो? आई एम सपोज योर टीचर ऑफ अकाउंट्स, आई एम द वन हु विल टेक द फुल पोर्शन ऑफ अकाउंट्स. मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ इन योर 11th स्टैंडर्ड, और आप क्या सीखने वाले हो इज ओनली वन थिंग, एंड दैट इज हाउ टू record business transactions in the scientific manner. और ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो जाएगा, 6 महीना लगेगा. स्टेप बाय स्टेप I as your teacher will teach you what are the various business transactions. उसको बहुत सारी बुक्स होती है. फर्स्ट बुक का नाम है जर्नल, सेकंड बुक का नाम है लेजर, वैसे करके कैश बुक, परचेस बुक, ऐसे बहुत सारी बुक्स होती है. तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्हाट आर द वेरियस बुक्स, और उस बुक को कैसे बनाया जाता है रियल लाइफ में. एक बार तो तुमको मैन्युअली सीखना ही पड़ेगा, ताकि रियल लाइफ में तुमको अगर कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड करना रहेगा देन यू शुड वेरी वेल नो हाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस इन द साइंटिफिक मैनर. सो दैट इज एग्जैक्टली योर सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड इज. एंड द लास्ट स्टेटमेंट नाउ, तुम 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे एक छोटे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करने का. फिर तुम 12th में आ जाओगे तो तुम सीखोगे
एक पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा, 2-3 लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करते रहेंगे, तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करने का। ऐसे करते करते जब तुम सीए फाइनल में पहुंच जाओगे तो तुम सीखोगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम सुना है सबने, तो ये अब इतनी बड़ी कंपनी जो करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है, उसका ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। मुझे बताओ तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज टुडे मैनेज बाय मोदी गवर्नमेंट, उसका भी इनकम होता है, उसका भी एक्सपेंसेस होता है। कैन यू टेल मी गवर्नमेंट का इनकम क्या होता है? टैक्स होता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंस क्या होता है? सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई उसका भी तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे एक छोटी सी दुकान के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और सीए फाइनल तक तो 5 साल में यू विल नो how to record the transaction of state government, how to record the transaction of central government, how to record the transaction of big companies like Reliance, Tata, Birla, so many big companies are there. मतलब as a professional you will have this subject from 11th standard up to CA final, from a small shop to a big country like India, उसके books of accounts को कैसे रिकॉर्ड करने का, ये लोग का क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है। इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. I will be taking the full portion in your batch in 11th standard, 12th standard and CA foundation. I don't share my subject with anybody because I myself is the second highest in accounts in entire country. जब मैंने मेरा CA फाइनल का एग्जाम दिया था, I stood second highest in entire country in this subject. I'm a master of this subject and I lay very strong foundation at 11-12 foundation. I am the teacher who will also teach you the same subject in CA Inter, and I am the teacher who will teach you the same subject in CA Final. I'm one of the rare teacher in this coaching industry who teaches in 11th standard also and who teaches in CA final also. So as a student क्या होता है, हम एक टीचर के मेथड से used to हो जाते हैं, और फिर बार बार अगर टीचर चेंज होता है then it may become difficult. बिकॉज मार्केट में तुम देखोगे तो कोई 11th-12th में पढ़ाता है तो CA में नहीं पढ़ाता है, CA में पढ़ाता है तो 11th-12th में नहीं पढ़ाता है. सो एवरी ईयर यू कम अक्रॉस डिफरेंट टीचर्स, whereas I don't agree with that philosophy. So I will lay very strong foundation of the subject step by step, बहुत डिटेल में करवाऊंगा, so that your CA Inter, CA Final, your CFA, your CS, your professional degrees will become comparatively very easy for you. So that is all from my side. If you have any query based on what I spoke today, it can be about subject, it can be about anything else, please feel free to ask me right now. कोई भी छोटा मोटा दिमाग में क्वेरी रहेगा, कुछ पूछना रहेगा, सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, बैच के बारे में पूछना है, टीचर्स के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, कुछ भी पूछना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज़ वेरी वाइटल डिसीजन ऑफ योर करियर. क्योंकि बहुत बच्चों का 11th और 12th का बेस वीक हो जाता है, क्योंकि उनको नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो टीचर सिर्फ 11th-12th पढ़ाते हैं वही पढ़ाते हैं, और फिर उनका बेस वीक हो जाता है तो उनको हायर लेवल में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है. सो इट इज़ योर करियर, इट इज़ योर लाइफ. तो अच्छे से जो भी क्वेरी रहेगा बिंदास पूछने का, तुम कस्टमर हो, सो दैट यू कैन टेक वाइजर डिसीजन एज टू वेयर यू वांट टू जॉइन एंड फ्रॉम विच टीचर्स यू वांट टू लर्न. सो यू आर ए कस्टमर, प्लीज डोंट हेजिटेट. आपको कुछ भी पूछना है, आई एम हियर, यू कैन प्लीज आस्क. नो क्वेरी? पक्का? ठीक है. स्टिल यू वांट टू टेक माय नंबर, यू कैन टेक इट फ्रॉम द ऑफिस. And anytime you want to talk to me, you can just WhatsApp me. मैं लेक्चर वगैरह से फ्री होके आपको कॉल बैक कर लूँगा. If your parents want to talk something to me, they can always talk to me. Yeah? All the best. Our batch is starting on 2nd June, Monday. I think you are aware about. ऑफिस से प्रोस्पेक्टस वगैरह कलेक्ट नहीं किया रहेगा तो कर लेना.
And 2nd June Monday, our full-fledged lectures will start. Thank you.